Hello, guys, and welcome to our new video on Jacobian. So, here I will be just explaining this. Yeah, see, in Jacobian, you have always seen that we write how the area element transforms from one to another form when some transformation occurs. So we will be proving this and how it is proved, because and we will proving in a way which you have never seen in any type of book or anywhere. So let's begin to our new easiest proof of Jacobian. So here you see we have a transformation equation given by something like this: x dash like ax plus by and y dash to be cx plus dy, and it can be represented in matrix form by something like this. So okay, and if the x dash y dash and the things are very infinitesimally small, then above formula can be written like this also. So okay, then in the form of in the books it is written like something like this, and it is said that the area element transforms through the determinant of this matrix. Actually this matrix is called Jacobian, where we have the x dash differentiated with respect to x with respect to y. See, so see, it is something like when you have x dash given by x and function of x comma y, function x comma y, then you can write the total differential dx dash as something like partial derivative of x dash with respect to x, then dx and dy. And when you do the partial derivative of x dash with respect to x on this, you will get a. So it is a dx, and similarly for this we can write this. Okay, so actually you can see this del x dash by del x in place of a and this in place of b. So this is how I have written this form, this dx dash in and dy dash in forms like this. Okay, so the beauty of our proof, this proof lies in the transformation. This transformation is actually converting a Cartesian square into a parallelogram. So so see here, we will be understanding the proof with the help of vectors. So suppose now we are like forgot about Jacobian and any other thing. Now I am starting a very new story, okay, and you will feel like how we reach the Jacobians. So here we are having two vectors x I cap and y j cap. This is x I cap, y j cap. We apply a transformation given by this a x I cap by. This is a transformation, and if you have something transformation like this, then you will get new vectors b vector and c vector. Okay, so this vector, this is x vector, and see, when you have the new c vector will lie here, and the new b vector lies here, suppose. Okay, so it's easy to understand till here. Okay, now another thing which is that, suppose you have a unit vector along b vector and along c vector as I cap dash and j cap dash. Okay, unit vector, now these new b vector and c vector lies on new axis as this, where I cap dash and j cap dash are the unit vectors. See, they are the unit vectors. Okay, having the same direction as b vector and c vector. Okay, सी दिस मतलब यह जो लिखा है ना एक्स डैश, इसका मतलब बस इतना ही है कि जो बी वेक्टर है ना, उसका आई कैप डैश के अलोंग जो कंपोनेंट है वो इतना बी ही है। ठीक है, अब जो सी वेक्टर है इसका ये जे कैप डैश के अलोंग जो पार्ट आ रहा है वो केवल वाई डैश इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बस केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है ना। समटाइम्स आई थिंक आई एम बेटर एक्सप्लेनिंग इन हिंदी सो right now I will switch to Hindi, and but the things I have written is in English. Okay, so
नाउ लेट्स फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। मतलब इसके बीच में जो एरिया लाई करेगा ना, हम उसको पता करेंगे और उससे जैकोबियन कैसे निकलता है देखो वो पता पड़ेगा। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ शो करूंगा। वो प्रूफ किसका है? वो प्रूफ ये है कि यार जो दो वेक्टर्स के बीच में जो एरिया लाई करता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के ही इक्वल होता है, और इसको हम बी क्रॉस सी से भी निकाल सकते हैं। यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट से आप एरिया निकालते हो वो पैरेललोग्राम के एरिया के ही इक्वल होता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे कैसे यार, पहले क्योंकि ये भी एक छोटा सा प्रूव है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो लेट्स गो हेयर सी। सपोज हमारे पास में एक बी वेक्टर है, ई पी जो है वो बी वेक्टर था और ई एम जो था वो सी वेक्टर था। अभी आपने पहले भी देखा होगा। अब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड बी, ऐसे ही लिखते हैं ना अपन, बी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी, है ना। तो अब हम इसका क्या निकालते हैं? इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है हमको, है ना। क्योंकि देखो अगर कोई वेक्टर है ई पी बी वेक्टर, ई एम एक सी वेक्टर है, इन दोनों से जो एरिया बनेगा, दो वेक्टर से जो एरिया बनेगा ये पूरा पैरेललोग्राम का एरिया होगा, ठीक है। ये नहीं कि ये ट्रायंगल ही उसका एरिया होगा, नहीं। ये दो वेक्टर्स है तो इनके बीच जो एरिया होगा ये पूरा पैरेललोग्राम का एरिया होगा, ठीक है। तो जो एरिया होगा इस पैरेललोग्राम का पूरा, ये क्या होगा? ट्वाइस होगा इस ट्रायंगल के, ई एम पी। इस ट्रायंगल का अगर ट्वाइस कर दोगे ना तो आपको एरिया मिल जाएगा पैरेललोग्राम। क्योंकि यार देखो देखो ना, ई पी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एम पी ई जो ट्रायंगल है और एम पी एन जो ट्रायंगल है, इन दोनों का एरिया इक्वली तो है, ठीक है। तो जो एरिया, अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बेस क्या है? मैग्नीट्यूड बी। हाइट क्या है? एच जो है सी साइन थीटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ओके। सो जो अब एरिया हुआ पैरेललोग्राम का, इस वैल्यू को यहाँ पुट करो इस फॉर्मूले के अंदर, तो पुट करोगे ट्वाइस ऑफ हाफ बी सी साइन थीटा, दिस इज बी सी साइन थीटा। और यही वैल्यू आपको मिलती है अगर आप बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करते हो। सो द एरिया लाइंग बिटवीन टू वेक्टर्स इज नथिंग बट बी क्रॉस सी विच इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। सो फटाफट से हम अपने प्रूफ पे आते हैं। हमारा प्रूफ जो था वो था कि हमको एरिया निकालना है, अच्छा ठीक है ना। तो अब जैसे अभी देखा था आपने बी और सी का जो कैसे लिखा था हमने, बी और सी, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है। अब कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, पता होगा ये तो आपको। हम यहाँ पे आई जे के लिखते हैं, फिर उसके बाद में ये कंपोनेंट जो होते हैं इनके, उनको ऐसे लिखा जाता है, ओके। अब के कैप जो होगा उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे यार, ऑब्वियसली देखो ये बाकी तुम निकालोगे वो जीरो आएगी, सिर्फ एक की वैल्यू बचेगी, वो होगी के कैप के लॉन्ग। और के कैप से निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे इसको, तो वो वैल्यू यहाँ लिख दी गई है, ठीक है। तो ये तो आपने निकाली है बी क्रॉस सी, यही अब सिमिलरली यार मैंने बी क्रॉस सी को सिर्फ ऐसे डिफाइन किया था क्या? नहीं, मैंने एक और चीज़ लिखी थी बी क्रॉस सी में, कि जो बी क्रॉस सी है इसको आप आई कैप डैश और वाई डैश जे कैप डैश भी लिख सकते हो ना। तो अब इसका क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या है, यहाँ पे पहले एक्सेस थी आई और जे, है ना। अब क्या हो गई है? आई कैप डैश और जे कैप डैश एक्सेस हो गई है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जब मैं इसको करता हूँ बी क्रॉस सी, तो एक्स डैश इधर आ जाएगा, बाकी जीरो रहेंगे, यहाँ वाई डैश आएगा, बाकी जीरो रहेंगे। जब आप निकालोगे इसका एरिया तो एक्स डैश वाई डैश, एरिया क्या डिटर्मिनेंट, तो एक्स डैश वाई डैश आएगा, ओके। अब ये दोनों इक्वल है यार, हम कर तो बी क्रॉस सी ही रहे हैं ना। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं बताऊंगा नहीं, बट आपको खुद से समझनी चाहिए। मैंने यहाँ पे कि के कैप लिखा है, यहाँ पर भी के कैप लिखा है, जबकि यहाँ तो आई जे है और यहाँ पे आई कैप डैश जे कैप डैश है, यहाँ पे के कैप डैश क्यों नहीं लिखा? सो दिस इज वॉट यू आइडेंटिफाई फ्रॉम योर सेल्फ। ऐसा क्यों है? हिंट यही है कि जो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है वो आई कैप जे कैप का लो या आई कैप डैश जे कैप डैश का लो, होगा वो दोनों सेम ही। तो ये हिंट है, अब आपको समझना है कि यहाँ पे दोनों जगह सेम के कैप ही क्यों आया, ठीक है। तो अभी दोनों का जो एरिया होगा ए वन वही दूसरे इक्वल होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये के कैप का जो कोफिशिएंट है ये एक्स डैश वाई डैश है, यहाँ पे के कैप का जो कोफिशिएंट है ये ए डी माइनस बी सी एक्स वाई है, दोनों को इक्वेट कर दो, दिस इज व्हाट यू गेट। हमने अभी क्या निकाला अभी तक? क्योंकि अब यहीं से जैकोबियन दिख जाएगा आपको, यहीं से आपको जैकोबियन का फॉर्म दिख जाएगा। हमने कुछ भी नहीं करा, बस इस चीज़ को समझा यहाँ पे किस प्रकार। यहाँ पे पहले हमारे पास में x एक वेक्टर था, y एक वेक्टर था, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करा b और c के अंदर, ठीक है। और हमने निकाला अब जो एरिया है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, बस यही करा हमने। ये जो एरिया है ट्रांसफॉर्म होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखाई देगा। तो ये देखो यहाँ पास में पहले ये था, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा,
तो हमने बस इसको निकाला है। एंड नाउ आई विल शो हाउ कि देखो अभी आपके पास में रिजल्ट आया था। अब जैकोबियन कैसे बन गया ये देखो, द सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। आगे पास में एक्स डैश वाई डैश ए बी सी डी एक्स वाई एक मैट्रिक्स थी, एकदम स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने यही आपको मैट्रिक्स दिखाई थी, है ना। अब जब इसका आपको निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन, क्या कहते हो, आपकी जो एरिया एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ जे, यही तो आप कहते हो। ओके, सो यहाँ पे जो लिखा है आप इसको रीड कर सकते हैं। ओके, सो इफ़ एक्स वाई आर इनफाइनेटेसिमल डी एक्स डी वाई, और मान लो एक्स डैश वाई डैश भी छोटे होंगे, डी एक्स डी वाई डी डैश होंगे, तो जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और यही तो आप पढ़ते हो यार जैकोबियन के अंदर, दिस इज हाउ द एरिया एलिमेंट ट्रांसफॉर्म। देखो यार मेरे माइंड में हमेशा से ही डाउट रहा था पहले भी कि यार जैसे मान लो मैं ये जो एरिया निकाल रहा हूँ ये डी एक्स डी वाई है ना, तो अब मैं कुछ और जो छोटा एलिमेंट लूँगा, मतलब सॉरी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो मान लो वो कुछ डी एक्स डैश और डी वाई डैश बन रहे हैं, तो मेरे में हमेशा डाउट था डिटर्मिनेंट ऑफ जे जो है ये बीच में आ कैसे गया। सिंपल, जैसे मान लो यहाँ पे डी एक्स डी वाई है इक्वल टू डी एक्स डैश डी वाई डैश क्यों नहीं होता, ये मेरे को कभी समझ नहीं आया। मेरे को लगता था कि यार ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे डिटरमिनेंट जे क्यों आता ही है, क्योंकि मेरी गलती पता है क्या थी, मैं ये समझ रहा था जैसे कि यहाँ पे आपने लिख दिया डी एक्स डी वाई, ये एरिया लिख दिया, क्यों लिख दिया, अरे यार स्क्वायर का एरिया ये तो होता है डी एक्स इंटू डी वाई तो होता है, जो स्क्वायर का एरिया डी एक्स डी वाई तो होगा। बट मैं उस समय क्या समझ नहीं पा रहा था, ये कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो जो चीज़ है ना अब वो स्क्वायर नहीं बन रही है, अब वो पैरेललोग्राम बन जा रही है। और मैं क्या सोच रहा था कि यार उसका जो एरिया होगा वो डी एक्स डैश डी वाई डैश होगा। अरे नहीं यार, अगर मेरे पास कोई पैरेललोग्राम है उसका जो बेस है वो डी एक्स डैश लेंथ का है, उसका जो मतलब और जो वैसे जो स्लैंट होता है वो डी वाई डैश है, तो उसका एरिया ये डी एक्स डैश डी वाई डैश होना होगा, उसका एरिया अलग होता है। पैरेललोग्राम का और स्क्वायर का एरिया अलग अलग होता है, इसलिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ जे जो भी ये आता लिखा लिखा आता है। और इसका जो मैं फिर मैं वापस से इसी लाइन पे आपको फोकस करूंगा। द ब्यूटी ऑफ द प्रूफ लाइज इन द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो ना कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ, इधर ये रहा, कहाँ लिखा था ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ऐसा ऐसा है कि ये पहले ए लिखे हैं बी लिखे हैं फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सी लिखेंगे डी लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन की ब्यूटी है यार। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या करता है, स्क्वायर को पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर देता है, एंड दिस इज व्हाई यू हैव समथिंग लाइक दिस। सो नो आई नो वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया बट इतना होना नहीं चाहिए था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।